This is Professor Iram from Department of Chemistry. Extend a warm and cordial welcome to all the respected dignitaries or esteemed resource person, faculty members, researchers, students and participants joining us today. Climate change is one of the most pressing global challenges of our time, and chemistry plays a vital role in understanding environmental processes, developing sustainable materials, promoting green technologies, and reducing environmental pollution. We are delighted to organize this state level webinar on the very relevant and timely theme, the role of chemistry in combating climate change. Thank you all for taking the time to be a part of this academic event. To formally welcome our esteemed guest, our IQAC coordinator, Dr. Shakib Ahmed, to deliver the welcome note. Shakib, sir. Good morning, one and all. Hello. Hello. Good morning, one and all. Yes, sir. Good Am I morning. audible? Good morning. It gives me immense pleasure to welcome all the dignitaries who are gathered here for this state level webinar on the topic of the role of chemistry in combating climate change. So I welcome on behalf of MGV's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City, our principal, vice principal, and all the staff members to this webinar. And I hope that today's webinar will serve all the objectives and it will be definitely beneficial to all the attendees. I once again heartily welcome all the dignitaries. Thank you very much. Hello. Hello. Sir. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Now, to highlight the aims and objectives behind organizing this webinar, I invite Head of the Chemistry Department, Professor Fozia, to kindly address the gathering. Over to you, ma'am. Hello, Yes, ma'am. respected principal, vice principal, distinguished research person, esteemed colleague, dear students, good morning. As Professor Iram introduced the webinar introduction, I am here to provide the aims and objectives. The aim of this webinar is to highlight the role of chemistry in combating climate change. And the objectives are to create the awareness about the sustainable solutions and to promote the green chemical practices for environmental protection. I sincerely thank our respected principal, Professor Dr. Mrinal Bardwaj, Vice Principal Dr. Arif Anjum, for their constant support in organizing this webinar. I also appreciate the efforts of the ARC coordinator, Dr. Mubin Nazir, and coordinator of the webinar, Professor Mudassir, for organizing this valuable academic program. I am confident that this webinar will be informative, insightful, and meaningful for all the participants. Thank you. Over to Professor Iram. Thank you, ma'am. Now, we are truly honored to have with us a distinguished academician and researcher with rich experience in teaching and research. Now, I request Professor Mudassir to kindly introduce today's resource person. Thank you, madam. Am I audible? Yes, sir. Respected guest, faculty members, participants, and dear students, on behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandir Arts, Commerce, and Science College, Malegaon City, Autonomous, I, Professor Mudassir from Department of Chemistry, welcome to you to all webinar. I take great pleasure in introducing our esteemed guest, Dr. Syed Mohammad Himayu Akhtar is an accomplished academician and researcher in the field of applied chemistry.
industrial chemistry, and nanotechnology. He is currently serving as an assistant professor in the Department of Applied Sciences and Humanities, MMANTC, Malegaon, Maharashtra. He earned his PhD in applied chemistry from Aligarh Muslim University, where his doctoral research focused on green synthesis of nanometal using medicinal plant extract and evaluation of their antibacterial properties. He also holds MSc and BSc degree in industrial chemistry from AMU. With more than decade of experience in teaching and research, Dr. Humayun has contributed significantly through peer-reviewed publications, conference presentations, and academic mentoring. His research interests include green chemistry, nanomaterial, environmental chemistry, and sustainable technologies. He is actively involved in academic research activities, curriculum development, and quality initiatives, demonstrating a strong commitment to scientific innovation and higher education. Over to ma'am. Thank you, sir. Now I request Dr. Syed Humayun Akhtar to kindly deliver his expert lecture on the role of chemistry in combating climate change. Sir, the virtual platform is all yours. Thank you, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, sir. Okay, respected Principal, Professor Dr. Mrinal Bardwaj, Honorable Vice Principal Dr. Arif Anjum, sir, respected HOD Professor Fauzia, esteemed coordinator Mr. Mudassir, faculty members and dear participants. First of all, I would like to express my sincere gratitude to the management of Mahatma Gandhi Vidya Mandir Arts, Commerce and Science College for their continuous support and commitment towards academic excellence and research-oriented activities. I am very thankful for the kind and generous introductory remarks. I feel honored by the warmth and respect extended to me. I would also like to thank the Department of Chemistry and the Academic Research Cell of Mahatma Gandhi Vidya Mandir's Art, Commerce and Science College for inviting me to be a part of this state-level webinar on the topic, the role of chemistry in combating climate change. So climate change is a global challenge and chemistry plays a really vital role in developing sustainable and innovative solutions. I hope today's session will be informative and intellectually enriching for all the participants. Thank you once again for the warm welcome. Let me start my presentation. So from the very first slide, you can see our earth is on fire. And the second animation is about the person who is doing some research in a chemistry lab. And third is a bus having zero emission. And fourth is Happy Earth Day. So this is the entire topic which is going to be covered during this presentation. Actually, my focus is on academic research because this presentation is mainly depend upon the chemistry which is involved in the combating the climate changes. And since it is academic research cell and Department of Chemistry are organizing this webinar, so I thought to focus my lecture on research so that the academician as well as the students which are participating in this webinar get some information and can move in the field of the research because there are lots of research gap which our student can focus and they can move in the academic. So first of all, we should understand this is actually the earth. You can see it's moving. And next is, can you reach a carbon neutral? This is my content. First of all, I'll talk some motivation.
then carbon capture, utilization and storage, then catalysis for CO2 conversion, then green hydrogen and clean fuel, battery and energy storage chemistry, sustainable green materials, green chemistry and process innovation, atmospheric and climate chemistry, role of chemists in climate action, and last but not the least is the conclusion. So, before moving to our main topic, I would like to tell you something about the things which are globally a very challenging thing. That is, global temperature has already increased by approximately 1.2 degrees C since pre-industrial era. Although this line looks very small, but actually, what is the consequence of this? And we can observe, हम लोग इस चीज को observe कर सकते हैं. The consequence of this is that there is more frequent heat waves. The glaciers are melting. Sea level rise हो रहा है. Rainfall का pattern change हो रहा है. And there are extreme weather events. तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इस साल की बात करें आप, तो आप देखिएगा कितना एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हुए हैं. रेनफॉल पैटर्न भी चेंज कर गया है. इवन आप देखिए, हम लोग मतलब बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि वी हैव जुलाई एंड अगस्त फॉर द रेनफॉल, बट आप देखिए सितंबर, अक्टूबर, इसमें भी आप रेनफॉल आपको मिल रहा है. इवन द सी लेवल इज कंटिन्यू राइजिंग, और उसमें भी आप देखेंगे फ्रीक्वेंट हीट वेव्स, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया है. तो दीज ऑल आर द कंसिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर. और यहाँ पे बात खत्म नहीं हुआ, बल्कि साइंटिस्ट ने वार्न किया है. दे हैव वार्न दैट इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस 1.5 डिग्री सी लिमिट, देन इट विल बी वेरी मच, आई कैन से, बहुत डेंजरस हो सकता है कि अगर हमने इसको नहीं रोका तो जो हमारा मिशन है 2050 का, जीरो मिशन का, तो शायद वो हम उसको अचीव ना कर पाएं. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि किस तरह से वो जो एमिशंस या जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो उसको हम रिड्यूस करें, जिससे जो कंसिक्वेंस हम फेस कर रहे हैं अभी, उस कंसिक्वेंस से हमें छुटकारा मिले. So over 90% of climate solution depend directly or indirectly on chemistry. So this is a problem. देखिए, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम तो हम जानते हैं, there are lots of problem. Important is the solution, कि हम उसका solution क्या देंगे. And as an academician, as a scientist, or as a researcher, or as a student, this is a very important thing. See, only becoming a किसको बोलते हैं ना कि किताबी कीड़ा बन जाना, that's not enough. But we should think about the environment also. We should also think what we can give to the society, what we can give to the world. जो हमने पढ़ा है उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होना चाहिए, जिससे सोसाइटी को फायदा हो, जिससे एनवायरनमेंट को फायदा हो, ग्लोबली लोग उससे फायदा उठाएं. एंड दे एक सोचने का ये चीज़ है कि भाई हम किस तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में हो. सो एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो 90% ऑफ क्लाइमेट सॉल्यूशन डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन केमिस्ट्री. सो यू कैन सी दैट कि 90% जो है वो केमिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली. इट मींस देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च एरिया ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो एक बहुत ही समझिए हॉट टॉपिक है हमारे रिसर्च एरिया का, क्योंकि डेफिनेटली नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट आई कैन टेल होल वर्ल्ड इस वक्त जो है परेशान है ये CO2 इमिशन की वजह से. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसर्न. So climate change is not only an environment problem, but it is a chemical imbalance of our planet. तो अगर हम इसको बहुत ही केमिकल लेवल पे अगर देखें, so it is a chemical imbalance. और केमिकल इम्बैलेंस है अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल जो एमिशंस, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, एंड दैट चेंजेस आर, मैं बोल सकता हूँ, दैट इज कंसर्न विद द ह्यूमन बीइंग्स. As because whatever we are, for example, the soil pollution or water pollution or whether it is air pollution, they all are concerned with the human beings. As because what are the emissions which are coming out from the factories or the emissions, the water is polluted,
या जो soil pollution हो रहा है, we are using pesticides and other harmful chemicals for the growth of the crop. These all things are doing a chemical imbalance of our planet. So since it is a chemical imbalance, so as a chemist, we should come with an important solution to combat this. Okay, so as you can see that every one molecule of carbon dioxide traps heat 100 times more effectively than oxygen. एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड 100 टाइम्स हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है देन ऑक्सीजन. Another thing is that CO2 remains in the atmosphere for 100 to 1000 years. See, there are lots of, if we talk about the greenhouse gases, we have carbon dioxide, we have CH4 and we have nitrous oxide. But carbon dioxide is main concern because the concentration of carbon dioxide approximately in our atmosphere 420 ppm, and that is a big concern, and it remains in the atmosphere for 100 to 1000 years, so it cannot be removed easily. But जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम तो है. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हम तो फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते हैं, हम जो है अपना जो है जो भी चीज हम जो वाटर यूज कर रहे हैं वाटर यूज बंद नहीं कर सकते हैं, हम जो है क्रॉप को ग्रोथ बंद नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू, तो जो एमिशंस हो रहा है दैट एमिशन जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं, जिसको हम कन्वर्ट करें और उसको न्यूट्रलाइज करें, ये काम हम कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं करना है बल्कि हमें उसका सॉल्यूशन बताना है कि भाई सॉल्यूशन क्या है. तो थिंक दैट इज दिस टू कैप्चर, कन्वर्ट एंड न्यूट्रलाइज. सो कैन अ मॉलिक्यूल दैट कॉज द प्रॉब्लम बिकम द मॉलिक्यूल दैट सॉल्व इज? यस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है. तो अगर इफ वी कैप्चर दैट कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल कन्वर्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड and or it became to neutralize that carbon dioxide, or you can say we can use this carbon dioxide for making any useful material, then that carbon dioxide can be reduced from the atmosphere. Okay, so coming to our next topic, that is carbon capture, utilization and storage. So carbon capture, utilization and storage is really a very important topic. As because this carbon capture, जैसे मैंने पहले कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्रीज से जो हमें बहुत ज्यादा एमिशंस मिल रहा है, तो जैसे मैंने कहा हम इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते हैं बिकॉज डेफिनेटली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, डिमांड ऑफ द गुड्स इज इंक्रीजिंग. तो हम चाहेंगे इंडस्ट्री बंद हो जाए, हम चाहेंगे भाई क्रॉप वो हम ग्रो ना करें, इम्पॉसिबल है. तो अब जो चीज एमिशन हो रहा है उस एमिशन को किस तरह से हम उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, हाउ वी कैन कैप्चर इट इजिली, और फिर उस कैप्चर करने के बाद उसको हम किस तरह से रिलीज करें, और फिर उसको हम रिलीज करने के बाद उसको एक इंपॉर्टेंट जो है कहते हैं कि जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट करें. तो एक इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एडवांस अमीन बेस्ड सॉल्वेंट. तो ये जो अमीन बेस्ड सॉल्वेंट होता है दैट इज अ वेरी गुड, और अभी जो है ब्लेंडेड अमीन्स आयनिक लिक्विड्स, इसमें बहुत रिसर्च हो रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से इन सब जो केमिकल्स हैं इसको यूज कर करके हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोस्फेयर में उसको कैप्चर करें और उसको कैप्चर करके फिर रिलीज करना. इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिलीज करने में जाहिर सी बात है लॉट्स ऑफ हीट एंड पावर इज यूटिलाइज. तो किस तरह से हम उस लेस पावर में लेस एनर्जी में उसको हम रिलीज करें जिससे हमारा जो है कॉस्ट, जो एनर्जी कॉस्ट है वो हमारा रिड्यूस हो. नेक्स्ट इज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क. दिस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, दिस इज हाईली पोरस क्रिस्टलाइन मटेरियल मेड बाय लिंकिंग मेटल विद द ऑर्गेनिक लिंकर्स. देयर आर मिलियन ऑफ टाइनी पोर्स giving them extremely large surface area. जैसे हमने आप देखिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल चाय होता है, चाय बनाते हैं तो उसमें चाय की पत्ती होती है, तो उस चाय की पत्ती को हम फिल्टर करते हैं. तो फिल्टर करने से क्या होता है, चाय की पत्ती जो है वो फिल्टर के ऊपर रह जाता है और चाय नीचे आ जाती है. तो इसी तरह से मेटल ऑर्गेनिक जो आपके फ्रेमवर्क्स होते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड सेलेक्टिविटी बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है,
So they are made in such a way that they can trap only carbon dioxide and they are not released. So this is very important कि ये हम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे भी हमारा रिसर्च का फोकस हो सकता है कि जहां पे हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली हम कैप्चर कर सकें. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर यूजिंग रिडॉक्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स. दिस इज ऑल्सो अ रिसर्च एरिया वेयर यू कैन फोकस. सिंस इलेक्ट्रोकेमिकल में हम जानते हैं जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल की बात होती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल में जब भी बात होगी देयर इज कैथोड एंड एनोड, देयर इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक अक्सर जो है मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन या कैथोड एनोड में क्या होता है. सी वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज दैट इन कैथोड या इन एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल का. तो अगर किस तरह से अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या करते हैं CO2 जो कैप्चर हमने किया और फिर उसको हम रिलीज किए तो CO2 को हम कैप्चर करते हैं एक इलेक्ट्रोड पे और दूसरे इलेक्ट्रोड पे फिर हम उसको रिलीज करते हैं. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे हम अपने रिसर्च को फोकस कर सकते हैं. इसका इंपॉर्टेंट जो सबसे फायदा ये होता है कि देयर नो नीड ऑफ लार्ज हीटर्स और कंप्रेशर्स. हम विदाउट हीटिंग विदाउट कंप्रेशर को यूज किए हुए हम CO2 को इजिली जो है अप्लाई कर सकते, इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको रिलीज कर सकते हैं विदाउट हीट और हाई प्रेशर. So CO2 captured directly from the flue gas and even air converts CO2 into fuels, methanol and polymer. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कैप्चर किया इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं सिंथेसिस करने के लिए. So if you see the carbon capture motivational data, so one coal power plant emits 5 million tons of carbon dioxide per year. So you can imagine by seeing this data कि 5 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एक एमिशन है सिर्फ एक कोल पावर प्लांट से. उसके अलावा ये तो एक मैंने सिर्फ एक कोल, तो कितने कोल पावर प्लांट हैं, कितने एमिशंस हैं, कितने जो है आप देखिए ऑटोमोबाइल्स और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे एमिशंस होते हैं. अब उस एमिशंस को किस तरह से हमें कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है किस तरह से हम कैप्चर करें उसको और डिफरेंट टेक्निक से कैप्चर करके उसको न्यूट्रलाइजेशन करें. इवन जो न्यू MOF मटेरियल है दे कैन कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड 10 टाइम फास्टर देन अ ट्रेडिशनल सॉल्वेंट. तो जो MOF है हमारा दैट इज वेरी गुड मटेरियल बट द कॉस्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ MOF इज वेरी हाई. तो ये एक प्रॉब्लम है MOF के साथ, जो कॉस्ट ऑफ सिंथेसिस जो है बहुत ज्यादा होता है. नो डाउट इट इज वेरी गुड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड बट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कॉस्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ MOF इज वेरी हाई. Okay, so next is catalyst for CO2 conversion. So we know that catalyst is a material which actually what does catalyst do? ये आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको रिड्यूस कर देता है ना. हम जानते हैं बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो खुद से नहीं होते हैं. You have to add some catalyst. तो कैटलिस्ट का काम क्या है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे रिएक्टेंट इजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है. तो ये कैटलिस्ट जो सिंगल एटम कैटलिस्ट है जैसे कॉपर है, निकल है, आयरन है, तो ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है. एंड दिस इथेनॉल कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. अगर हम बात करें तो एक लेमैन लैंग्वेज में समझें तो कार्बन ये जो आपकी कैटलिस्ट है वो CC कपलिंग करता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो इथेनॉल है इथेनॉल में आपका भाई CH3 CH2 OH है. तो CC कपलिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है. ये कपलिंग का काम ये आपका जो है कॉपर, निकल, आयरन के जो सिंगल एटम्स हैं ये कपलिंग के काम करते हैं. उसी तरह से इसमें यूनिफॉर्म एक्टिव साइट्स होते हैं जो बेटर कंट्रोल करते हैं अदर रिएक्शंस को. स्ट्रॉन्ग मेटल सपोर्ट इंटरेक्शन होता है. सो दिस रेफर, तो इसमें आप देखिए जो फोटो कैटलिस्ट नेक्स्ट जो है वो फोटो कैटलिस्ट है इज यूजिंग द विजिबल सनलाइट टू रिड्यूस CO2. तो फोटो कैटलिस्ट मटेरियल का काम क्या है टू एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट. फोटो मींस लाइट. तो फोटो कैटलिस्ट मतलब जो विजिबल लाइट है तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करना और फिर उस एनर्जी को केमिकली कन्वर्ट करना CO2 को यूजफुल प्रोडक्ट में. तो सनलाइट, फोटो कैटलिस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे आर नाउ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट. तो व्हाट इज फोटो कैटलिस्ट? एक्चुअली सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है. उसका काम क्या है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जनरेट करना और ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स को
फिर यूज करना टू ड्राइव एनी केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको ड्राइव करने के लिए। तो जो विजिबल सनलाइट की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका विजिबल लाइट है दैट एब्जॉर्ब 45% ऑफ द सोलर एनर्जी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फोटो कैटलिस्ट। जो हम पहले फोटो कैटलिस्ट यूज करते थे, दे यूज टू एब्जॉर्ब यूवी लाइट, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 5%। बस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये आपका सोलर एनर्जी जो है 45% सोलर एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो न्यू मटेरियल्स आर इंजीनियर्ड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो एक रिसर्च का एरिया ये भी है कि हम किस तरह से वो कैटलिस्ट डेवलप करें जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करे। जिससे हमारा क्या होगा, जब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगा, और वो एक ग्रीन एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं आपका कन्वर्शन के लिए। सो नेक्स्ट इज एंजाइम इंस्पायर्ड कैटलिस्ट मिमिकिंग द नेचुरल कार्बन फिक्सेशन। सो हम जानते हैं एंजाइम क्या होता है। एंजाइम इज ऑल्सो कैटलिस्ट एंड दैट इज अ नेचुरल कैटलिस्ट। तो एंजाइम एक नेचुरल कैटलिस्ट है। इसका भी काम वही है कि ये आपका कन्वर्ट करेगा। क्या कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट करेगा आपका जो भी यूजफुल प्रोडक्ट्स है, जो जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जहां पे कम है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके आपका रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। सो दिस इज ऑल्सो इट रेफर्स टू आर्टिफिशियल कैटलिस्ट डिजाइन टू कॉपिंग द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल एंजाइम। जैसे हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दिस 4 कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और उसके बदले मुझे क्या मिलता है? उसके बदले मुझे ग्लूकोज मिलता है, एंड दैट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द प्लांट में स्टोर्ड होता है। सो सिमिलरली दिस आर्टिफिशियल कैटलिस्ट, जिसको हम एंजाइम कैटलिस्ट बोल सकते हैं, दे कैन बी ऑल्सो यूज टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। Coming to the next topic, that is green hydrogen and clean fuel. This is also a hot topic of the research. Green hydrogen is a hydrogen produced by splitting water using renewable electricity, solar, wind, hydro through electrolysis with zero carbon emission. We know that we are dependent on fossil fuel, but on the other hand, हम जानते हैं जो fossil fuel हम use करते हैं, these fossil fuel they emit carbon monoxide and other harmful gases which are harmful for the environment. They are contributing the global warming. So एक important challenge पूरी दुनिया में इस वक्त ये है भाई किस तरह से इस emissions को हम green बनाएं, किस तरह से जो fuel है उसको हम green बनाएं, जिससे जो हमारा जो emission है वो reduce हो, zero emission हो। तो उसके लिए कहते हैं green hydrogen एक very important जो है वो आपका material है, और वो simple क्योंकि water is available in the entire 3/4 of the earth is we are having water. तो इस water को हम use करके हम किस तरह से through electrolysis this green hydrogen can be used as a fuel and that can be and that will release a zero carbon emission. But for doing this we need advanced catalyst, that is platinum, nickel or iron, that reduces heat energy loss in the electrolysis. So photoelectrochemical cells produce hydrogen directly from sunlight. So another research area is photoelectrochemical cells that uses sunlight to split water into hydrogen and oxygen, producing hydrogen fuel directly without first generating electricity. So important challenge is to produce hydrogen by splitting water. So splitting water is not an easy task. आप चाहें lab में easily वो हो जाए, it's not an easy task. And once the water is split into hydrogen and oxygen, you can easily get the pure hydrogen. And that hydrogen can be easily converted and that can be used as a fuel directly without generating, without any emission. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसे green hydrogen can be used for making ammonia, methanol and other important useful fuels. So you can see we are moving through EVs. So hydrogen has 3 times more energy per kg than petrol. Important thing is that whenever we are talking about the fuel, important is calorific value. हमें calorific value बहुत important factor होता है उसमें। किसी भी fuel को calorific value ज़्यादा है, it means that वो fuel अच्छा है। तो calorific value जिस fuel का इतना ज़्यादा होगा, वो fuel इतना अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब है कि hydrogen जो है, it gives more energy. तो more energy दे रहा है पेट्रोल से, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसकी calorific value ज़्यादा है। और जब कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा है तो डेफिनेटली इट विल गिव्स मोर एनर्जी, और उसको हम चूंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जीरो एमिशन है इसमें, तो हमारा
इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट नहीं होगा. So green hydrogen emits zero carbon dioxide. So by 2030, hydrogen could reduce 20% of the industrial emission. जैसे मैंने कहा एक important challenge है कि green hydrogen बनाना. लेकिन अगर ये green hydrogen बनता भी है और बहुत से countries में इसको adopt भी किया गया और इस पे काफी research भी हो रहा है. जैसे मैंने कहा एक challenge है कि splitting water, that is very important challenge. So by 2030, if hydrogen जो है वो it could reduce 20% of the industrial emission. Another topic is battery storage. So we know that an important thing is energy storage. तो energy जैसे for example if you are using mobile phone, हम चाहते हैं भाई कि कम वक्त में चार्ज हो जाए और ज्यादा देर तक के लिए चले. ये हम सबका मोटो भी होता है. लेकिन हम अगर देखें पहले जो मोबाइल फोन्स आते थे उस मोबाइल फोन में क्या होता था, टाइम भी ज्यादा लगता था चार्ज होने में और बहुत कम टाइम में डिस्चार्ज भी होता था. तो अब चूंकि हम ईवीज की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मोबाइल तो चलिए कोई ठीक है, आदमी चार्ज खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, वो आपने जहां पे जिस प्लेटफॉर्म पे भी है, जहां पे भी बैठा है वहां चार्ज कर सकता है. लेकिन आप इमेजिन कीजिए इफ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आप बहुत लॉन्ग सफर के लिए निकले हैं, बहुत लंबे सफर के लिए निकले हैं और रास्ते में पावर आपका खत्म हो जाए. तो अब ऐसा नहीं है, अब जानते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा पावर स्टेशन हर जगह मौजूद नहीं है. तो हम क्या चाहेंगे भाई कि वो जो हमारा सेल है, जो एनर्जी स्टोरेज है, वो ज्यादा से ज्यादा हो और कम वक्त में हो जाए, जिससे क्या है कि भाई उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं लॉन्ग रन के लिए. तो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि भाई किस तरह से वो बैटरी जो हम यूज कर रहे हैं उसमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा स्टोर होना. सो हम जानते हैं कि भाई लिथियम आयन बैटरीज दैट यूज आयनिक लिक्विड्स, लिथियम आयन बैटरीज जो है वो आयनिक लिक्विड यूज कर देते हैं. लेकिन अब वो रिप्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च है कि किस तरह से सॉलिड स्टेट बैटरीज जो है वो आपका अब इसको रिप्लेस करेगा. इस सॉलिड स्टेट बैटरीज का फायदा क्या है? देयर इज नो लीकेज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फायर एक्सप्लोशन नहीं होता है और इसकी हायर एनर्जी डेंसिटी होती है. डेंसिटी हायर डेंसिटी होगा तो एनर्जी स्टोरेज ज्यादा होगा, लीकेज नहीं होगा तो वो बैटरी डैमेज नहीं होगा जल्दी. और हम जानते हैं कि भाई लिथियम आयन बैटरीज में ऑफन फायर एक्सप्लोशन का भी वहां पे एक डर रहता है. तो these are some of the important benefits of using the solid state battery. Similarly, sodium ion batteries is also an alternative to the lithium. Organic redox flow batteries using carbon based molecule, this is also an important area of research. So renewable fails without storage. तो हम जानते हैं कि भाई हम एनर्जी को रिन्यू करना चाहते हैं अगर तो डेफिनेटली वी नीड स्टोरेज एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. One solid state battery can increase EV range by 40 to 60%. So when we are using an ionic liquid, जब हम लिथियम आयन बैटरी जब हम लिक्विड को यूज कर रहे थे तो उस टाइम इतना स्टोरेज नहीं था. लेकिन जब हम सॉलिड स्टेट बैटरी यूज करेंगे तो द रेंज इज 40 to 60%. सोडियम आयन बैटरीज यूज अबंडेंट मटेरियल्स, नॉट रेयर लिथियम. तो अगर हम सोडियम आयन बैटरीज, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च. इफ यू यूजिंग दिस, सो इट्स आल्सो, हम जानते हैं सोडियम इट्स अबंडेंट मटेरियल as compared to lithium. So our next topic is biodegradable polymer from plant-based monomer. हम जानते हैं कि भाई जो पॉलीमर है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीथीन, जो पॉलीथीन हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन एक्चुअली इट इज आल्सो मेड अप ऑफ पॉलीमर. वन इंपॉर्टेंट चैलेंज इज टू हाउ टू, हम जानते हैं पॉलीथीन या जो भी पॉलीमर्स हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि पॉलीमर वक्त के साथ डिग्रेड जल्दी नहीं होता है. तो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज था हमारे सामने भाई किस तरह से ये डिग्रेड करे, क्योंकि हम जानते हैं पॉलीमर जो है मोनोमर का बना होता है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है. तो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को जाहिर सी बात है डिग्रेड करना ये आसान काम नहीं होता है. तो अब जाहिर सी बात है ये पाइलअप हो रहा है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो सॉइल है, सॉइल में पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, इवन माइक्रो प्लास्टिक आप देखिए आज के जो माइक्रो प्लास्टिक है दैट इज कॉजिंग कैंसर. So these are all important challenges of using polythene or other polymers which are not degraded. So scientists thought that why not to make a biodegradable polymer, and that from the plant-based monomers, because we know that for any polymer to synthesize polymer we need monomer. लेकिन अगर मोनोमर ही हमारा जो है वो मोनोमर अगर हमारा वो बायोडिग्रेडेबल ना हो
तो वो जाहिर सी बात है हमारा पॉलीमर बायोडिग्रेड कैसे होगा, नेचुरल ना हो, आर्टिफिशियल हो, तो जाहिर सी बात आर्टिफिशियल मोनोमर हम बना रहे हैं, तो फिर हमें जाहिर सी बात है कि भाई दैट इज वो खुद पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो चैलेंज दो है, एक तो प्लांट बेस्ड मोनोमर यूज करना और दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाना। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म में वो क्या होगा कि जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो भी होते हैं उसको ब्रेक, चेन को ब्रेक करना है, मेन इंपॉर्टेंट है जो चेन है, लॉन्ग चेन है उसको ब्रेक करना है। तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके लिए इन्वायरमेंट और खुद नेचर ऑफ द पॉलीमर, ये तीन कंडीशन होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आप बना रहे हैं और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डिग्रेड करेगा तो तीन चीज में चाहिए, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में क्योंकि बहुत से ऐसे टेम्परेचर है, मॉइस्चर है या प्रेशर है, बहुत से ऐसे कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो फेवर करता है उसको, और तीसरा नेचर ऑफ द पॉलीमर, मतलब पॉलीमर खुद कैसा है, पॉलीमर में आपका चेन जो है वो कैसा है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो 3D स्ट्रक्चर है, वो लीनियर स्ट्रक्चर है। जहां से वो 3D स्ट्रक्चर होगा वो इजिली ब्रेक नहीं करेगा, जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो इजिली ब्रेक करेगा। So these biodegradable polymers can be synthesized and they can also reduce the burden of the environment. So CO2 dry plastics and foams are available, self-filling recycled composites. Environmental benefit क्या है, reducing plastic waste and fossil based raw materials, lowers life cycle carbon footprint. So green chemistry and process innovation. So what actually is green chemistry and its process innovation? So solvent free and water based reaction. जैसे मैंने कहा ऐसे, for example, if you're synthesizing hydrogen as a clean fuel, then water is used. So water is abundant and water is a clean, and water based reactions are not very costly. और वो water based reactions आप जानते हैं कि इतना जो है वो environment problem नहीं होता है उसमें. Similarly, AI guided reaction optimization to reduce waste. For example, if you are synthesizing a new product, तो हम जानते हैं hit and try method करते हैं. We do lots of research, we do lots of development, we do lots of reactions. किस तरह से जब हम बहुत सारे reactions, बहुत सारे experiment करते हैं, तो एक favorable product निकल के आता है, एक favorable product बनता है. तो किस तरह से हम AI guided reaction optimization करें, जिससे हम क्या है कि हमें वो guide करें कि हम भाई कम chemical को use कर करके एक अच्छा product बना लें. इसी को हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं. नहीं तो क्या है कि भाई हम लॉट्स ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं और 100 रिएक्शन करने के बाद फिर एक नया प्रोडक्ट या अच्छा प्रोडक्ट जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना, तो वो जो 100 रिएक्शन में जितने केमिकल्स यूज हुए, तो डेफिनेटली वो केमिकल्स तो दैट इज कॉजिंग हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट. Similarly, lower emission from the chemical industry, safer and clinical manufacturing process, these all are the motives of the green chemistry and process innovations. Similarly, atmospheric and climatic chemistry. तो अब देखिए इसमें क्या है, improve chemical models for aerosol cloud interaction, better understanding of methane oxidation pathways, identification of short-lived climate pollutants. So why is important? It helps to predict the climate change accurately. So once we are able to predict the climate change, then it will be easy for us. For example, if we are able to predict कि भाई अभी एक हफ्ते बाद हो सकता है बारिश हो, तो we can take the measures. We can take the things that भाई हम उसको रोक सकते हैं, जो उससे नुकसान होने वाला उसको हम रोक सकते हैं. Similarly, it guides the policy decision और emission control. तो वो हमें गाइड भी करता है कि भाई हमें किस तरह से पॉलिसी बनानी है जो हमें डिसीजन, एक emission control को डिसीजन करे. So as a chemist, what is our role? So designing low carbon technologies, collaboration with the engineers and the policy makers, translating lab research into real world solution. See, the main thing, the main problem throughout the world and even in India also is that how we can translate our lab research into real world solution. Often we can see that when we are doing a PhD or when we are doing any project or when we are doing any research, most of the research they go in vague. उसका कोई यूज नहीं है. क्या है, एक थीसिस बन गया, PhD का वाइवा हो गया, हम डॉक्टरेट बन गए. लेकिन व्हाट एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम था, क्या हमने उस अपने रिसर्च के थ्रू क्या उसको हमने कुछ सॉल्यूशन दिया? तो ये एक सोचने की बात है. एंड दैट इज अ रियल चैलेंज. No doubt we have lots of challenges, but we should also think on this parameter also, that the research which we are doing, how that research can solve a real world problem. जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और वो देखिए होता है.
आदमी अगर सोच ले और ये तय कर ले कि मुझे अपने रिसर्च के थ्रू कुछ ऐसा चीज इनोवेट करना है तो मैं कर सकता हूँ, और ये होता है, ऐसा नहीं है। हम शिकायत करते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, तो वो ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसी रॉ मटेरियल जो हमारे पास मौजूद हैं, जो फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं, उन फैसिलिटीज को सामने रख करके, वो रॉ मटेरियल्स को सामने रख करके बहुत सारे प्रोडक्ट को हम डिजाइन कर सकते हैं जो सोसाइटी को हेल्प कर सकता है। And for this, you don't need a very expensive things, or don't need expensive labs, or don't need expensive instruments. So, for example, even in our college, we have research and development cell. तो वहाँ पे जो हमारे सर हैं वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बहुत लोअर कॉस्ट में अच्छी अच्छी चीज बना के लेके आते हैं। तो these all things needs some concentration. हमें इस पे सोचना पड़ेगा किस तरह से जो रिसर्च हम कर रहे हैं, ये रिसर्च जो है वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्यूशन दे, जिससे हमारा जो प्रॉब्लम्स है, जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है, वो हम सॉल्व कर पाए। सो एवरी लैब एक्सपेरिमेंट कैन रिड्यूस एमिशन, एवरी ग्रीन रिएक्शन सेव एनर्जी। सो जो भी लैब एक्सपेरिमेंट है हम एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम चाहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे ग्रीन केमिकल्स होते हैं, और इवन जो है अगर मान ली एमिशंस हो भी रहा है तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं। उस प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करने की वजह क्या होता है, डायरेक्टली हम डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें तो भाई जैसे आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री में जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, और उस ट्रीटमेंट के बाद ही उस वाटर को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो भी वाटर जनरेट किया, जो वेस्ट वाटर है जो आपके इंडस्ट्री से निकल रहा है, उसको विदाउट एनी नॉर्म्स और विदाउट एनी ट्रीटमेंट यू कैन डायरेक्टली डिस्चार्ज इन द वाटर, इट्स नॉट, ये आपको अलाउ नहीं है। तो इसीलिए दैट हैज टू बी गॉन थ्रू रिगरस प्रोसेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, देन ओनली यू कैन डिस्चार्ज दैट वाटर। सो द फ्यूचर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अगर हम इस इन सब पैरामीटर्स पर अगर सोचें तो बहुत सारा रिसर्च का काम हम कर सकते हैं। सो एवरी केमिस्ट्री स्टूडेंट कैन बी ए क्लाइमेट प्रॉब्लम सॉल्वर। तो हम अपने आप को कम ना समझें, बल्कि हर एक स्टूडेंट जो केमिस्ट्री स्टूडेंट है वो क्लाइमेट प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है। और जैसे मैंने ये तो कुछ बहुत थोड़ा सा बताया, बहुत सारे प्रॉब्लम से मैंने कहा ना शुरू में, जैसे मैंने कहा कि देयर 90% ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी गिवन बाय अ केमिस्ट। 90% solution that is directly or indirectly they are related to chemistry. So every chemistry student can climate problem solver. So to conclude, chemistry is not just studying climate change but solving it. सिर्फ पढ़ लेने का काम खत्म नहीं है, भाई पढ़ लिया, जान लिया, वेबिनार अटेंड कर लिया, काम खत्म हो गया, नहीं, बल्कि वी हैव टू सॉल्व इट। और जो हमारा टारगेट है नेट जीरो का 2050 में, वो तभी अचीव होगा जब हम उसको कुछ अपना, जैसे मैंने कहा, रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे तो वो हो सकता है। So recent research shows strong potential in carbon capture, green hydrogen, sustainable materials. So a chemistry-driven transition is essential for net zero future. तो हम ये नहीं केमिस्ट्री को बाईपास करके नेट जीरो फ्यूचर को अटेन, या नेट जीरो जो हमारा मिशन है उसको अटेन करना, ये इम्पॉसिबल है। डायरेक्टली, जैसे मैंने शुरू में कहा in earlier that directly or indirectly we are dependent on chemistry because all changes in the environment are related to chemicals. If that changing, जो changes आ रहे हैं environment में, अगर उसको हम समझ लें, उस पर हम रिसर्च करें, उस पर नए चीजों को ला, और जिससे हमारा जो एमिशंस है या जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, तो बहुत सारा जो नेट जीरो फ्यूचर हम ला, जो नेट जीरो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। So achieving net zero by 2050 requires chemical innovation in every sector. So it requires a chemical innovation. सिर्फ हम ये बोल सकते हैं भाई केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री से ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। इसमें और भी मल्टी डिसिप्लिनरी जो है रिसर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वॉल्व मैकेनिकल इंजीनियर, यू हैव टू ऑल्सो इन्वॉल्व जो है ए केमिकल इंजीनियर, यू ऑल्सो हैव टू इन्वॉल्व अ सिविल इंजीनियर, यू हैव टू ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ मेडिकोज। सो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक टास्क है। सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई हमारा सिर्फ कंट्रीब्यूशन, नो डाउट वी हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन, बट स्टिल हम दूसरे का भी हमें हेल्प लेना पड़ेगा जिससे हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो। So this is all about my presentation. Over to you. Thank you, sir. Thank you so much for such an informative, insightful, and thought-provoking lecture. Your explanations on the role of chemistry in climate change, carbon capture and its utilization, green chemistry principles, sustainable materials, and future challenges was extremely valuable.
The lecture has certainly enhanced our understanding and motivated us to think responsibly towards environmental protection. We truly appreciate your efforts in sharing your valuable knowledge and experience with us. Now, it is time to express our gratitude. For this, I request Professor Atra to kindly propose vote of thanks. Thank you, ma'am. Good afternoon to everyone. I am Professor Atra. On behalf of Department of Chemistry and Academic Research Cell, Mahatma Gandhi Vidya Mandir, Arts, Science and Commerce College, Malegaon City Autonomous, I sincerely thank you all for making today's state level webinar a great success. I express my heartfelt gratitude to our respected resource person, Dr. Syed Muhammad Humayun Akhtar, for his insightful and informative session. Sir, your valuable thoughts on the role of chemistry in addressing climate change have truly enriched our knowledge and inspired all the participants. I would like to extend my sincere thanks to our respected principal, Professor Murunal Bhardwaj, for her constant guidance and encouragement. My sincere thanks also go to Dr. Arif Anjum, Dr. Shakib Ahmed, and Professor Fawzia Parveen for their continuous support. I would like to appreciate the efforts of our organizing committee members, Academic Research Cell in charge Dr. Mubin Nazir, Program Coordinator Professor Rahmani Mudassir, Professor Sauda Sadaf and Professor Iram for their dedication in organizing these webinars successfully. Finally, I thank all faculty members, staff, and participant for their active cooperation and participation. Once again, thank you all for your valuable time and support. Thank you.